Hello guys, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to see the practical named as determination of MIC. MIC का full form ये है minimum inhibitory concentration. We have seen the antibiotic sensitivity testing methods in our previous lectures. So अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब. Do watch my videos. Do not forget to like the videos and share the videos. Okay, so please subscribe to my channel. So determination of MIC practicals determines the exact or minimum concentration of antimicrobial agent or antibiotic which is having the activity of bacteriostatic. Okay, bacteriostatic means what? हमने देखा था in antibiotic classification. Antibiotics are classified into two forms: bacteriostatic antibiotics and bactericidal antibiotics. तो bacteriostatic antibiotics क्या होते हैं? जो antibiotics which only inhibit the growth of microorganism. और bactericidal antibiotics कौन से होते हैं? The antibiotics which kills the माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या स्टडी करेंगे? द लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ microorganism. So this is the definition of minimum inhibitory concentration. Now this test, minimum inhibitory concentration test, determines the lowest concentration of an antimicrobial agent that hinders the visible growth of microorganism in a culture medium. जहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? The inhibitory growth of microorganism in a culture medium, broth form. Okay. This test is used to evaluate the efficacy of novel antimicrobial drugs and other antimicrobial treated compounds against bacteria. तो ये टेस्ट क्या डिटरमाइन करती है? The efficacy of novel, newly discovered antimicrobial agents की और drugs की. This test evaluate the efficacy. Okay. A lower MIC value indicates that less drug is required for inhibiting growth of the organism. तो MIC की वैल्यू अगर लोवेस्ट आई तो it will indicate that the less drug is required. Less amount of the drug is necessary to inhibit the growth of microorganism. Therefore, drugs with lower MIC scores are more effective antimicrobial agents. इसीलिए मार्केट्स में जो antimicrobial agents का lowest MIC वैल्यू होती है वही most of the time डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं because they have the proper efficacy और effect towards the bacteria or microorganisms. By identifying appropriate drugs and their effective concentrations, MIC scores and aid in improving outcomes for patients and preventing evaluation of drug-resistant microbial strains. Okay, तो appropriate drugs की by identification of appropriate drugs and their effective concentration, by determining these, MIC scores helps in improving the outcomes for patients. ठीक है, पेशेंट्स के लिए वो हेल्पफुल है बिकॉज इट इज़ ईजी टू स्टडी द इफिकेसी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स ना. तो इसी बाय यूजिंग दिस डॉक्टर्स कैन प्रिस्क्राइब इफेक्टिव ड्रग्स. अंडरस्टूड. नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ MICs क्या है? MIC इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ मोस्ट बेसिक लेबोरेटरी मेजरमेंट टेक्निक है. देन इट डिटरमाइंस द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. It has in vitro susceptibility. It can be performed in a small scale range and we can monitor the activity of antimicrobial agent in a lab also. Okay, so these are the importance of MIC. Now let's see the procedure of MIC. In this practical, we are going to study the MIC, determination of MIC using broth dilution method. Here we are using the growth culture medium in a broth form. यहाँ पे हम broth में डिटरमाइन करने वाले हैं MIC. मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग मेथड इन अ प्लेट फॉर्म, जहाँ पे हमने प्लेट पे ऑब्जर्व की थी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी. बट इन मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट जहाँ पे हम ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड यूज़ करने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट इनोकुलम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, उसको हमें प्रिपेयर करना है, उसका इनोकुलम प्रिपेयर करना है, उसका सस्पेंशन प्रिपेयर करना है. So to prepare a test inoculum for a minimum inhibitory concentration test, you can emulsify overnight colonies or dilute a broth culture. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? We can emulsify, we can take the separate colony and we can prepare the suspension in a broth form. Here we use the culture media is Muller-Hinton broth. MH ब्रॉथ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. बाय टू मेथड्स, मैक्रो डाइल्यूशन एंड माइक्रो डाइल्यूशन, हम सस्पेंशन प्रिपेयर कर सकते हैं. मैक्रो डाइल्यूशन में हम 1 ml ऑफ ब्रॉथ लेंगे और माइक्रो डाइल्यूशन में 0.05 to 0.5 ml ब्रॉथ लेंगे. ओके, सो पहले हम वी विल सिलेक्ट द कॉलोनीज, आइसोलेटेड कॉलोनीज हम सिलेक्ट करेंगे. देन वी विल प्रिपेयर अ सस्पेंशन. सस्पेंशन तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो बट यू हैव टू स्टैंडर्डाइज द सस्पेंशन बाय यूजिंग द मैकफार्लन स्टैंडर्ड. मैकफार्लन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी ओडी जो भी सस्पेंशन की 0.5 आनी चाहिए इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमीटर. ओके, तो आपके सस्पेंशन की ओडी 0.5 आनी चाहिए. बाय यूजिंग दिस यू विल स्टैंडर्डाइज द सस्पेंशन. ओके, देन द सेकंड स्टेप इज टू प्रिपेयर द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट स्टॉक सॉल्यूशन. यू हैव एंटीबायोटिक प्रोवाइडेड. ओके, डायरेक्टली एंटीबायोटिक का पाउडर आपके पास प्रोवाइडेड है बट यू हैव टू प्रिपेयर द स्टॉक सोल्यूशन. तो आप उसका स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मास ऑफ एन एंटीबायोटिक्स इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ डाइल्यूएंट. पर्टिकुलर डाइल्यूएंट हमें लेना पड़ता है. डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैव अ डिफरेंट डाइल्यूएंट्स एंड सॉल्वेंट्स एंड पोटेंसी आपको ऑलरेडी इस पे लेबल की होगी. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल प्रिपेयर द स्टॉक सोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक. आफ्टर preparing the stock solution you will serially dilute
serially dilute the antibiotic. Okay, for watching the serial dilution technique, please go to my channel. वहाँ पे आपको serial dilution method मिलेगी. Okay, so please like and share my video of serial dilution technique. So after preparing the serial dilution of antibiotic, you will proceed for 96 well microtiter plate. Okay, तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे? You will plate out. आप सैम्पल भी प्लेट आउट करोगे एज वेल एज जो आपने एंटीबायोटिक्स का सॉल्यूशन बनाया है सीरियली डाइल्यूटेड वो वेल में प्लेट आउट करोगे, राइट. ये ऐसा प्लेट है जहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स भी प्लेट आउट करने हैं और इनाकुलम को भी प्लेट आउट करना है. बाय प्लेटिंग आउट दिस यू विल ऑब्जर्व द टर्बिडिटी. फिर आप इसको इंक्यूबेट करोगे. इन दिस डायग्राम यू विल ऑब्जर्व, पहले आपने प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट इनोकुलम किया, देन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट डाइल्यूशंस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट किया. यहाँ पे आपने सीरियली डाइल्यूट किया है, देखो. देन यू हैव इनोकुलेटेड इन 96 वेल प्लेट. फिर यहाँ पे आप उसको इंक्यूबेट करोगे. आफ्टर द इंक्यूबेशन यू विल ऑब्जर्व द टर्बिडिटी इन माइक्रोटाइटर प्लेट, जहाँ पे यू विल सी द फिफ्थ जो भी वेल है, फिफ्थ वेल से सेवंथ वेल तक यहाँ पे आपको टर्बिडिटी ऑब्जर्व हो रही है. दैट मीन्स हियर एंटीबायोटिक इज नॉट इनहिबिटरी टुवर्ड द बैक्टीरियल ग्रोथ, राइट. बट 10⁻⁻⁴ का जो वेल है, फोर्थ वेल इज इनहिबिटरी टुवर्ड्स द बैक्टीरियल ग्रोथ. यहाँ से आपको इनहिबिशन दिख रहा है. सो यू विल आंसर दिस फोर्थ वेल इज हैविंग मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन. तो आपकी मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है फिर? 10⁻⁻⁴. सो रिजल्ट्स कैसे आप नोट डाउन करोगे? आफ्टर द इंक्यूबेशन द टर्बिडिटी ऑफ द सैंपल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. टर्बिडिटी आप कैसे डिटरमाइन करोगे? बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. द टेस्ट सैंपल विदाउट और विथ लो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी विल शो द टर्बिडिटी. ओके, वेयर एज द टेस्ट सैंपल विथ स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी विल शो नो टर्बिडिटी. जो भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, दैट मीन्स विच इज हैविंग द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, को क्या देगा? नो टर्बिडिटी. बट द एंटीमाइक्रोबियल सैंपल हैविंग द लो कॉन्सेंट्रेशन विल show the turbidity. Okay. Thereby the lowest concentration of antimicrobial agent that is capable of inhibiting bacterial growth is called minimum inhibitory concentration. So by using this procedure, broad dilution method, you can determine the minimum inhibitory concentration value. Thanks for watching.